प्यारे बच्चों, पहले वाले वीडियो में हमने इंडस्ट्री शुरू किया था। अब आज हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री शुरू करें। इसको हम बेसिकली टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक रफ वर्ड पहले लिख लिया जाए कि 4 हिस्सों में अगर बांटा जाए तो किस किस बेस पर, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ हम एक कॉमन वर्ड लिख लें जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है। तो ऑन द बेसिस ऑफ किस किस बेस पर इसको बांटा जा सकता है। पहला वर्ड यूज हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। On the basis of raw material, on the basis of size, on the basis of ownership, or on the basis of capital investment। हमारी इंडस्ट्रियां बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड हुई है। On the basis of raw material, on the basis of size, on the basis of ownership, or on the basis of capital investment। जब on the basis of raw material की ओर बढ़े तो इसमें हम अपनी इंडस्ट्री को 2-3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है एग्रो बेस्ड, दूसरा है फॉरेस्ट बेस्ड, और तीसरा है मिनरल बेस्ड। ये ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमारी 3 तरह की इंडस्ट्रियां आई। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। लेट अस ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इन स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, और फिर कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज वी आर क्लासिफाइड इन 3 different groups। फर्स्ट वन प्राइवेट इंडस्ट्री, other is public industry, and other is joint industry, right? Let us on the basis of capital investment, it is either capital investment consumer goods industry or capital goods industry। एक चीज, the other one it is light engineering industry or heavy engineering industries। These are the classification of industries: basis of raw material, basis of size, basis of ownership, and basis of capital investment। On the basis of raw material industries, we are classified in 3 different groups: agro-based industries, forest-based industries, or mineral-based industry। On the basis of size, industries are being classified in 3 different groups: small-scale industry, large-scale industry, or cottage or village industry। On the basis of ownership, industries we are classified in private industry, public industry, or joint industry। On the basis of capital investment, industries are being classified in 2 different groups. One is capital consumer goods industry, and other is capital goods industry, or other word light engineering industry or heavy engineering industry। These are the types of industry on the basis of these different paths, these different tracks। Let us on up in next topic we will have to discuss on these bases। एक चीज फिर will depend on examples। Example of these industries।
अभी तो हमने केवल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा, अब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, कॉटेज या फिर कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के बारे में एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे कि ये इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं और वेयर इन इंडिया, भारत में कहां पर वो है। तो इसके लिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर, पहले वाले में हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया था, अब हम यहां पर को शुरू करें explanation on the basis of raw material classification of industries। अब हम टॉपिक वाइज चले तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पर हमारे पास जो इंडस्ट्रीज थी, हमने इसको एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यूज किया। अगर आप इसका टॉपिक यूज करें, व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, व्हाट आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, सिंपल स्टेटमेंट, the industries based on, right, we are using agricultural products, the industries based on forest products and the industries are based on mineral। ये on the basis of raw material, industries are being classified in 3 different groups. First was agro based industry, second was forest based industry and other was mineral based industry। What was agro based industry? The industries which are based on agricultural product। जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, और जो इंडस्ट्री मिनरल पर डिपेंडेंट है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सपोज हम इसका अब एक कंक्लूसिव एग्जांपल लेकर चले तो यहां पर एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड या फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे यहां पर वो कॉटन है, यहां पर प्लाई, यहां पर मिनरल में आप कोल यूज कर सकते हैं, मिनरल में आप आयरन ओर यूज कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, ये फॉरेस्ट पर बेस्ड है और ये मिनरल पर बेस्ड है। ये हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्टेटमेंट एज इट इज फॉरवर्डेड, ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर बीइंग क्लासिफाइड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज। जिस तरह से हमने ये स्टेटमेंट यूज किए उसी तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज को भी यूज करें। यहां पर क्योंकि अब साइज छोटा, बड़ा या फिर कॉटेजर है, तो यहां पर अब हम इसका साइज कैसे डिटरमिन करेंगे? यहां पर जो इसका साइज डिटरमिनेशन होगा बेस्ड ऑन कितना आप इसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साइज डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। सपोज करो
पैसे की बात करें तो लेस देन 5 lakhs, पैसा 5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है, और लेस देन 100 वर्कर्स, आप इतना एम्प्लॉयमेंट दे दें। अब यहां पर हम लेस देन यूज नहीं कर रहे, हम इसको मोर देन कर सकते हैं। पैसे की जहां पर बात है 5 लाख या 100 लेबर, यहां पर वो मोर देन 5 लाख और मोर देन 500 वर्कर्स, या स्टेटमेंट एज इट चला 5 लाख से ऊपर अप्रोक्सीमेटली करोड़ तक का पैसा आता है, और 500 से ज्यादा वर्कर्स आप इसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं। ये लार्ज स्केल। अब कॉटेज और ब्लेस इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज डिपेंड और बेस्ड ऑन ब्लेस, या फिर अगर आप इसका एग्जांपल यूज करें कॉटेज और ब्लेस इंडस्ट्रीज का, जो ऐसे काम गांव में चल सकते हैं, सब कुछ करो, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, ये गांव के काम है, और इसमें एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है। अब इन्हीं सब चीजों को आप चाहे तो यहां भी ऑन द बेसिस ऑफ साइज पर यूज कर सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्री के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब एक दूसरे से कोरिलेट होंगे। जैसे यहां पर आप कॉटेज और ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री माना, दूसरी तरफ यही कॉटेज और ब्लेस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये मैनुअल जॉब आएगा, छोटे स्तर पर हो सकता है। दूसरी तरफ जहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक तरह की मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, लेकिन यहां पर तो मैन पावर, वर्कफोर्स और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसलिए आप इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। अब इसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्योंकि हम छोटे स्तर से काम शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर इस कॉटन इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज डिपेंडेंट होगा कि हम कौन से एग्जाम्पल को किस जगह किस तरह से स्टॉप करें। ये हमारा पहला 2 हिस्से थे, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब अगले वाले में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और फिर ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और साइज के बारे में बात किया था, अब हम अगला टॉपिक यूज करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्री are classified in 3 different groups. The first one, it is private industry, other is public industry, and the third is joint industry. Right? As name suggested, private industry owned, controlled or managed by private individuals or group of individuals. That is private
private industry. The same word, owned, controlled or managed by government, that is public industry. And joint means public private partnership. In modern world which we are using for that joint industry, public private partnership means sharing of rights between government and private individuals. तो ओनरशिप के बेस पे वी आर क्लासिफाइंग आवर इंडस्ट्री इन 3 different parts, 3 different groups. Private industry, those industries which are managed, owned or controlled by private individual or group of individual. Public industry, controlled, managed or owned by government itself. Joint industry, the industry which are managed by government and private individuals or sharing of their rights of running the industry. They are joint industry. Let us, on the basis of capital investment, there are two different states. One was consumer goods and capital goods, right? On the basis of capital investment, the consumer goods industry or capital goods industry. Second one, light engineering industry or heavy engineering industry. These are the classic. Let's think at what are consumer goods industries? The industry which produce goods for consumers or daily goods, useful goods, such as these clothes, such as these jobs. This means those goods which we can use regularly, daily basis. They are consumer goods industry. It may be agro-based industry. It may be forest-based industry. It may be mineral-based industry. And previously, it may be small-scale industry. It may be cottage or village industry. Similarly, capital goods industry, the industries which produce goods for capital earning, such as heavy goods industries, like as Bharat Heavy Electricals, turbines, like as railway. Railway means railway locomotives, bagans. ठीक, तो यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे, वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, जिसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री हो सकती है। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कैपिटल प्रोड्यूस करे, जैसे हमने हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लिखा है, वर्ड लिखा, जिसमें आप रेलवे बागान्स बनाएंगे, रेलवे लोकोमोटिव्स बनाएंगे, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बड़ी बड़ी टरबाइनें बनाएंगे। ठीक, इससे क्या है कि हम इसका डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं, हम तो पैसा जनरेट कर रहे हैं, ये पैसा ही, इसलिए हमने इसको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर्ड यूज किया। सिमिलरली लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बेसिकली हम इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कैपिटल में यूज करेंगे। ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स वी विल क्लासिफाई आवर इंडस्ट्रीज। क्योंकि हम क्लास 10th में हैं और
हम क्लास 10 के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयरिंग कर रहे थे, इसलिए अब अगर हम इन चारों इंडस्ट्री टाइप्स की बात करें तो हमें यहाँ पर किस बारे में बात करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा उसके एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर ली जाए तो पहली चीज हम वर्ड यूज करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें हम पहला यूज करें टेक्सटाइल। अभी केवल इसका आइडेंटिफिकेशन बाकी चैप्टर पर बात में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये कॉटन, सिल्क, वूल और जूट, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई। इसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही हमारा जो दूसरा वर्ड आया, इसमें फिर हम शुगर पर आए, ये हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आया। फिर हम अगली चीज पर चले आए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहां पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हमारा सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सबसे पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री। इसके बाद कॉपर है, इसके बाद सीमेंट है, इसके बाद ऑटोमोबाइल्स है, राइट। ये हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अभी वैसे बहुत सारी चीजें हैं, हम एज पर आवर स्टैंडर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इन चीजों की बात करें, कॉटन, सिल्क, वूल और जूट। मिडिल में आयरन और स्टील, कॉपर, सीमेंट और ऑटोमोबाइल्स का यूज करेंगे। इसके बाद जो अगली चीज आएगी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और इसका साइड इफेक्ट। तो इसके लिए क्योंकि अब ये टोटल एक नया तरह की, देखिए अभी हमने 4 तरह की टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की बात करी थी। अब प्रश्न ये है कि एज पर आवर स्टैंडर्ड हमें कितना बात करना है। हमें यहां पर बात करना है कुछ इंडस्ट्रीज जो यहां पर चल सकती थी और उनका स्टेटस क्या है, और इन इंडस्ट्रियों का हमारे एनवायरनमेंट पर किस तरह का फर्क पड़ता है। यदि आप यहाँ पर क्लास बेसिक जूनियर क्लासों की बात करें तो अगर हम इस केवल पॉल्यूशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हमारे पास 3 या 4 तरह के हैं। एक लैंड, वाटर और एयर पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। इस लैंड में हमने सॉइल पोल्यूशन का यूज किया था, यहां पर वाटर पोल्यूशन ऑटोमेटिकली है। एयर पोल्यूशन में हमारे पास ये नॉइज पोल्यूशन भी आता था। लेकिन यहां पर हम इसके कॉजेस की बात नहीं करेंगे कि क्या कारण है पॉल्यूशन में, लैंड पोल्यूशन के या सॉइल पोल्यूशन के क्या कारण है, क्या वाटर पोल्यूशन के कारण है, क्या एयर पोल्यूशन, हम इस चीज को नहीं बात करेंगे। हम बात क्या करेंगे इसके इफेक्ट्स, एक चीज और मीजर्स टू ओवरकम। तो इसके लिए आपको फिर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।